بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں ذوق احمد۔ میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں صدف دورانی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے۔ بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ۔ اسحاق ڈار منگل کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اہم خبر ہے، آپ کو بتائیں کہ اسحاق ڈار وطن واپسی کے ساتھ ساتھ منگل کو اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان نے ہمیں جوائن کیا۔ غلام حسین اوان بتائے گا، کیا میاں نواز شریف نے اشارہ دے دیا؟ جی بالکل، آج پاکستان مسلم لیگ نون کی اہم بیٹھک اختتام پذیر ہوئی۔ ابھی لندن کے اندر سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور دیگر مسلم لیگی رہنما جو ہے وہ 4.5 گھنٹے تک جو ہے وہ سر جوڑے جو ہے وہ بیٹھے رہے، اور یہی فیصلہ ذرائع کے مطابق کیا جا رہا تھا کہ اسحاق ڈار کی وطن واپسی اور ان کو جو ہے اہم ذمہ داریوں کے متعلق جو ہے وہ کیا کیا جائے۔ ابھی ظاہر میں یہ کنفرم کیا ہے اس کے بعد کہ جو میٹنگ کے اندر جو اہم فیصلے کیے گئے ہیں ذرائع کے مطابق، اس میں یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب یہ آنے والے ہفتے کے پہلے 2-3 دن کے اندر ہی پاکستان جائیں گے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ عدالت میں جا کر پیش ہوں گے۔ اس کے بعد اپنی سینٹرشپ کا حلف اٹھائیں گے، اور اسی روز جو ہے وہ ان کے حوالے جو ہے وہ وزارت خزانہ کا قلمدان کیا جائے گا۔ یہ ساری جو ڈسکشن ہے یہ یہاں میٹنگ کے اندر طے ہوئی، اور ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسٹریٹجی پر غور کیا گیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ آئندہ چند دنوں کے اندر جو ہے وہ اہم فیصلہ ہو سکتا ہے اور اہم اعلان کیا جائے گا۔ ابھی جو ہے وہ اسحاق ڈار کی یہ کہا جا رہا ہے کہ اسحاق ڈار جب وزیر خزانہ بن جائیں گے پاکستان جا کر، لیکن جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ بھی جو ہے وزارت خزانہ کی ٹیم کا حصہ رہیں گے۔ اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لندن میں جب 4.5 گھنٹے تک یہ میٹنگ ہوئی، اس کے دوران جو ہے وہ پاکستان میں جو موجود ہے مسلم لیگی سینئر رہنما، ان سے بھی ٹیلی فونک مشاورت کی گئی، ان کو بھی مشاورت کا حصہ بنایا گیا، اور جب سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ انہیں پاکستان آ کر جو ہے وہ اپنی سینٹرشپ کا حلف بھی اٹھانا چاہیے، اور پھر وزارت خزانہ کا قلمدان جو ہے وہ ان کے حوالہ کیا جائے۔ اس پر جو ہے وہ جب وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر نواز شریف نے جو ہے وہ اس پر آمادگی ظاہر کی۔ اب اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دیر قبل جو ہے وہ میڈیا سے مختصر گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری پاکستان واپسی کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، تاہم ابھی فیملی کی میٹنگ ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میری جو ٹکٹ ہے وہ بدھ کے روز کی جو بک ہے، لیکن اس بات کا بھی ذرائع کے مطابق امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جب شہباز شریف اسپیشل فلائٹ سے پاکستان جائیں گے تو اسحاق ڈار جو ہے وہ اسی فلائٹ میں ان کا حصہ ہوں گے۔ جی ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی سائفر کی تحقیقات سے مشروط کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگر امریکی خط کی تحقیقات کی جائیں تو اسمبلی واپس آ سکتے ہیں۔ بھارت کی برتری اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی خارجہ پالیسی نہیں ہو سکتی۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ملکی مفاد کے تحت چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے۔ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں ہرگز نہیں دہرائی جائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات میں ملکی معیشت اور سیاسی امور پر گفتگو کی۔ قومی اسمبلی میں واپسی کو امریکی سائفر کی تحقیقات سے مشروط کرتے ہوئے کہا کہ قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ امریکی سائفر کیا تھا۔ بولے امریکہ سے برابری کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ قوم کی آزادی کے بدلے ڈالر لے لوں۔ وفاقی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت معیشت کو ایسے مقام پر لے آئی کہ دوا کے بجائے سرجری کی ضرورت ہے۔ مفتاح اسماعیل کینسر کا علاج ڈسپین سے کر رہے ہیں۔ حکومت نے نیب کے 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کرائے۔ نیب کا کیس ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار وطن واپس آنے کو تیار ہیں۔ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ماضی میں اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کپتان نے کہا کہ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ تحریک انصاف پہلی بار حکومت میں آئی تھی، اس لیے غلطیاں ہوئیں۔ معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بیسٹ وے گروپ کی طرف سے چیریٹی ڈنر کا اہتمام کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی ہے۔ مختلف اشیاء کی نیلامی بھی کی گئی ہے، اور مغیر حضرات کی جانب سے کثیر رقم سیلاب زدگان کے لیے جمع بھی کی گئی ہے۔ تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ۔ پاکستان میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بیسٹ وے گروپ کی طرف سے ایک چیریٹی ڈنر کا اہتمام سینٹرل لندن کے ہوٹل میں کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کے علاوہ سماجی اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔
तकरीब में बेस्ट वे ग्रुप के चेयरमैन सर अनवर परवेज, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लॉर्ड जमीर चौधरी, मेंबरान पार्लियामेंट साजिद जावेद, डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुर्तजा सैयद, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मुअज्जम अहमद खान के अलावा दीगर ने शिरकत की। बेस्ट वे ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लॉर्ड जमीर चौधरी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में सैलाब की वजह से जो लोग बेघर हुए हैं, मुश्किल की इस घड़ी में उनकी मदद की जाए और हमें खुशी है कि हमने अपना मतलूबा टारगेट हासिल कर लिया है। लोगों ने दिल खोल कर अतियात दिए हैं। ये तमाम अतियात सैलाब से मुतासर अफराद की बहाली के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। हमारे पास 650 से ज्यादा लोग थे। गवर्नमेंट ने भी अच्छा रिप्रेजेंट किया, जो लोग आए उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा टारगेट था उसको हमने बीट द टारगेट। बेसिकली जो हमने पहले डोनेशन दी थी मिल मिला के तो over $2 million हो गया हमारे। As BPF chairman, I would like to thank Chaudhry Zamir and Best Way Foundation जो इन्होंने काम कराया आज वो वाकई में काबिलियत है। और मैं सोचता हूँ कि चौधरी साहब जैसे दूसरे भी बड़े बड़े पाकिस्तानी हैं उनको भी मिलके हमारे जो पाकिस्तान में आजकल हाल हो रहा है वो उसके अंदर हेल्प करें जिस तरह से इन्होंने करा है। ये बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात। हम गुजारिश करते हैं ओवरसीज कम्युनिटी से कि पाकिस्तान के अंदर अपने भाइयों बहनों से अपनी कम्युनिटी से इमदाद के लिए दिल खोल कर जो है वो उनका तावन करें। बहुत अच्छी एफर्ट है और हमें बहुत ज़्यादा इसको सराहना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए भरपूर तरीके से। और आज हमने यहाँ पे देखा कि लोगों ने भरपूर तरीके से अपना दिल खोल के यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। I'm here today to participate on this great event, but also talk about global warming and the impact and the responsibility we have as an organisation, but other entities throughout the world have a responsibility towards global warming. We can see the impact in Pakistan. If we don't do the right thing and take action for global warming, it's only going to get worse. Our hedge funds invest quite a lot in Pakistan. Sports in Pakistan, cricket. We're working with the PCB and we're working on new projects for the PCB around Europe and investing so that things like problems like this we can help with them. उनका मजीद कहना था कि बेस्ट वे ग्रुप पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान को नए घर बनाकर देने के लिए पुरअज़म है, जिसके लिए $1.5 मिलियन का तखमीना लगाया गया है। तकरीब से मुर्तजा सैयद, साजिद जावेद और दीगर मेंबरान पार्लियामेंट ने भी इजहार ख्याल किया और बैनुल अक़वामी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान की हर हवाले से मदद करें। तकरीब में सैलाब ज़दगान के लिए $2 मिलियन की रकम जमा हुई। बादजा मुकामी कवाल ग्रुप चांद अली कवाल ने कवाली से हाज़रीन महफिल को महजूज किया। सलीम साबरी, नुमाइंदा 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के शोबे में सरमायाकारी को फरोग देने के लिए लंदन के मारूफ एक्सेल में पाकिस्तान एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी बरतानिया में पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर शफीक शहजाद थे। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। 2 दिन जारी रहने वाले पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो में शिरकत के लिए हजारों अफराद रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अलायंस एडवर्टाइजिंग और स्टार मार्केटिंग के इश्तराक से लंदन में पहली बार एक बड़े प्रॉपर्टी एक्सपो का एक्सेल अरीना में इनेकाद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में स्टार मार्केटिंग के अहमद महमूद, मारूफ टीवी एंकर अनीक अहमद, फहीम फारूकी, सज्जाद शाल और दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर ट्रेड मिनिस्टर शहजाद शफीक और दीगर का कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का महफूज तरीन जरिया है। एक्सपो में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े ग्रुप्स की शिरकत खुशाइंद है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान में हमेशा से बड़ा फाल रहा है और पाकिस्तान की इकॉनमी में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत मुस्बित रहा। हमारी इकॉनमी को जितने भी चैलेंजेस दरपेश हैं उसके बावजूद ये एक ऐसा सेक्टर है जो विच इज़ ऑलवेज बीन ग्रोइंग। और यूके एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमारा बड़ा एफ्लुएंट डायस्पोरा है यहाँ पे 1.6 मिलियन का, और उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है। आपके इल्म होगा रेमिटेंसेस हमारे पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड बड़ी हैं ग्लोबली भी, और यूके में से बहुत सारे लोगों ने अपने पैसे जो हैं पाकिस्तान में भिजवाए हैं। सो ये एक ऐसा सेक्टर है जो अट्रैक्टिव है फॉर इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन पाकिस्तान इन दिस सेक्टर्स। और मुझे खुशी इस बात की है कि इस इवेंट पे तमाम बड़े डेवलपर्स जो हैं उन्होंने शिरकत की है, भरपूर शिरकत की है। 2 दिन का इवेंट है। 40 के आसपास बिल्डर्स यहाँ पे आए हुए हैं और जो कराची लंदन में रहने वाले पाकिस्तानीज और यूके में रहने वाले पाकिस्तानीज भी यहाँ अच्छे नंबरों में आ रहे हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट हो रहा है। पाकिस्तानीज अपनी जो कंसर्न्स होते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से वो लोग बिल्डर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक चल रहा है हमारा।
पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो कल भी जारी रहेगा, जिसमें हजारों अफराद की शिरकत मुतवक्के है। एक्सपो में बिल्डर्स की जानिब से खुसूसी ऑफर्स भी पेश की जा रही हैं। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में ग्रीन शर्ट्स की नाकिस परफॉर्मेंस पर ओवरसीज पाकिस्तानी नाराज। नाकिस बॉलिंग और बैटिंग पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप से पहले मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बात नहीं करने चाहिए थे। ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाए जो मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान खेलने का तजर्बा रखते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है और मिडिल ऑर्डर एक्चुअली मेन प्रॉब्लम हमारा मिडिल ऑर्डर का है। मिडिल ऑर्डर जितनी देर तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इतनी देर तक हम जो है वो कंटिन्यू मैच जीतने की एबिलिटी नहीं रखते। तो इसलिए मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वंस मिडिल ऑर्डर हमारे पास अच्छे होंगे तो मैच इंशाल्लाह इजीली जो है वो जीत सकते हैं। अगर आप सिर्फ बाबर आजम और रिजवान के ऊपर ही रिलाई करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। इट्स अनफॉर्चुनेट द वे राइट नाउ हमारे जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मिडिल ऑर्डर में ख़ास तौर पे इफ्तिखार है। आसिफ तो खैर खिला नहीं कल, लेकिन आपको इसी तरह के प्लेयर्स चाहिए जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो कंसिस्टेंट हो। इनके नीचे जो है ना बिल्कुल ही समझ लें कि ना होने के बराबर है बैट्समैन। इनको चाहिए कि ऊपर से जब स्कोर होगा पाकिस्तान का, बाबर आजम और रिजवान करेंगे तो पाकिस्तान का स्कोर कुछ बनने की उम्मीद होती है, लेकिन नीचे जो है ना बिल्कुल इनके पास मिड ऑर्डर है ही नहीं ना, ऑलराउंडर है इनके पास। पाकिस्तान को इस मैच में सिर्फ अच्छा स्टार्ट नहीं मिला, लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ जो पिछले मैच की जो पाकिस्तान हारा उसमें ये था कि शान मसूद की बैटिंग थी जिसने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। सो होपफुली अगर एक मिडल ऑर्डर में उसके साथ कोई रन करता है तो हमने स्टिल स्कोर ओवर 150 रन की, जिसमें 150 रन से ज़्यादा किए। और उम्मीद है कि अगर आगे ये मिडल ऑर्डर क्लिक करता है तो अच्छा स्टार्ट मिलता है तो होपफुली वी कैन डू वेल। पाकिस्तान टीम जो है वो अनप्रेडिक्टेबल टीम है और ये नहीं कि वो अच्छा खेलते नहीं है, लेकिन वो जब खेलते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। और जैसे ही हमारे जो बैट्समैन हैं जो ओपन करते हैं रिजवान और बाबर, जैसे ही वो क्लैप्स कर जाते हैं उसके बाद हमारी पूरी टीम जो है 1 बाय 1 पवेलियन एंड की तरफ वापस लौट जाती है। तो नेक्स्ट 4 मैचेस का हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि बहुत अच्छे होंगे मैचेस, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं एज ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी, और हमें शौक होता है कि हमारी टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म करे। पाकिस्तान को चाहिए इस वक्त एक ऐसी टीम बनाए जो कि वर्ल्ड कप के लिए हो। ये ना हो कि 2 प्लेयर आज खिला रहे हैं और 2 प्लेयर यहाँ। तो इस वक्त मैच फील ये हो रहा है कि वो अपने अपने फेवरेट प्लेयरों को चेंज कर रहे हैं। यंगस्टर्स को भी चांस देना चाहिए, लेकिन ये है कि एक इनकंसिस्टेंसी जो है ना वो टीम में हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है। तो इन्हें इस चीज़ को दूर करना चाहिए। टीम में एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, प्लेयर्स के साथ इनका एक चीज़ होनी चाहिए, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, एवरीथिंग, सो दे प्ले लाइक अ टीम rather than individual innings. मिडल ऑर्डर में देखेंगे कि जो जितने भी प्लेयर हैं वो लेग साइड ज़्यादा खेलते हैं और उसमें उन्होंने अगर इंटरनेशनल लेवल पे उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं तो आपको उन प्लेयर को चाहिए कि जो बड़े टूर्नामेंट्स के प्लेयर हैं, जैसे कि शोएब मलिक है, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए। अब शान मकसूद वापस आया है और उसने प्ले किया, उसने अपनी क्लास दिखाई है, उसने इंग्लैंड के पिचेस में भी बहुत अच्छा वो खेलता रहा है। तो आपको ऐसा प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हो, जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप बैट कर सकते हैं। आपके पास जितने भी प्लेयर हैं जिसमें खुशदिल है, इफ्तिखार है और जो हैदर अली है, वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। वो अच्छे प्लेयर हो सकते हैं लेकिन वो इतने अच्छे प्लेयर नहीं है कि आपको टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट सच लाइक वर्ल्ड कप वो जिता सकें। खतीब हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौलाना सैयद ज़हीरुल हसन नकवी ने करबला में 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया से आने वाले ज़ायरीन को इराकी गवर्नमेंट सहूलियात मुहैया करती है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वालों के वीज़े भी कैंसिल हो रहे हैं और उनको डिपोर्ट भी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ज़ायरीन के हवाले से इराकी गवर्नमेंट से कोई बात नहीं कर रही। जिस तरह उम्रा और हज पर जाने वाले ज़ायरीन के लिए वज़ीर मजहबी उमूर सऊदी गवर्नमेंट से मुआहिदा करते हैं, उसी तरह इराकी गवर्नमेंट से भी मुआहिदा करके अपने शहरियों की मुश्किलात कम की जा सकती हैं। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अरबाइन में पूरी दुनिया से मिलियंस के हिसाब से लोग आते हैं, तो यकीनन पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी तादाद ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला आती है और आना चाहती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जो अक्सरियत मोमिनीन हैं वो इस काबिल नहीं होते कि वो बाय एयर आ सकें, इसलिए उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो बाय रोड सफ़र करें। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ अरसे से यहाँ पर इनलीगल इमिग्रेंट्स का आना बहुत ज़्यादा हो गया है। बगदाद से लेकर करबला, नजफ, हर शहर में ही तकरीबन उनकी एक अच्छी खासी तादाद पाई जाती है, जो हज़ारों में है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बताते हैं। और वो ज़ाहिर है यहाँ पर होटल्स के अंदर और मुख्तलिफ जगहों में काम करते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी उनके साथ डेफिनेटली होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसी बात को
एक बेस बनाकर इराकी हुकूमत, जहाँ पर अरबाइन में तमाम तर दुनिया के जो ज़ायर हैं उनको फैसिलिटेट करती है, कफाला खोल देती है, ऑन अराइवल वीज़ा दिया जाता है, विदाउट अप्रूवल वीज़ा दिया जाता है और स्टिकर वीज़ा दिया जाता है, और यहाँ पर भी उनके लिए सहूलियात होती हैं। हत्ता ये कि ईरान से आने वाले ज़ायरीन जो हैं उनको एक बरगह तरद्दुद उसे कहा जाता है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दे दिया एक पेपर, उसी पर वो आए हैं, पासपोर्ट भी नहीं है उनके पास, यानी यहाँ तक फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन उसके बिलअक्स पाकिस्तान के ज़ायरीन के साथ ये होता है कि जिनके हत्ता स्टिकर वीज़ाज लगे हुए थे, खुद एम्बेसडर साहब ने जो ग्रांट किए थे उनको भी कैंसिल कर दिया गया, OQ2 बोर्ड नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पर उनको बाज़ को उनमें से डिपोर्ट किया गया और यहाँ पर सख्ती की गई। अब जो आए हैं उनको पासपोर्ट रख लिए गए और फिर ये कि जो जिस एयरपोर्ट से आए हैं उसी एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे, और जो बाय रोड भी हैं उनको भी कहा जा रहा है कि वो बाय एयर वापस हैं। बड़ी मुश्किलात और मसाइल हैं। आयरलैंड का पाकिस्तान में सिफारत खाना खोलने की खबर ने आयरलैंड के बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बहुत बड़ा रिलीफ दिया है। इस बारे में देखते हैं फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। आयरलैंड की वजारत खारजा ने पाकिस्तान में आयरलैंड की एम्बेसी खोलने का ऐलान करके दोनों ममालिक के आवाम के लिए बहुत ज्यादा मसाइल के हल की तरफ कदम बढ़ा दिया है, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर्स, आयरिश हुकूमत, पाकिस्तान एम्बेसी और इन तमाम अफराद का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिनकी काविशों से ये सब मुमकिन हो पाया। आयरलैंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर एहसानुल्लाह चट्टा ने 92 न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये एक आगाज है और हमारा अगला हदफ आयरलैंड में नादरा सिस्टम को लाना है। हम चाहते हैं कि जिस तरह कुछ ममालिक के बाशिंदे बरतानिया का वीजा लेकर आयरलैंड सैर तफरी के लिए आ सकते हैं, इसी तरह पाकिस्तानियों को भी इजाजत के लिए काम शुरू कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून आयरलैंड की तरफ से आयरलैंड में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। हम पिछले कई सालों से पाकिस्तान में आयरलैंड की एम्बेसी खुलवाने के लिए, बनवाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे थे और आज ये कोशिशें रंग लेके आ चुकी हैं और पाकिस्तान में आयरलैंड की एम्बेसी का क़याम अमल में होने वाला है। और हम डिप्टी नील रिचमंड और वज़ीर ख़ारजा आयरलैंड साइमन कोवनी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और हमारे साथ आयरलैंड में रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हमारे साथ मिलकर ये कोशिश कर रहे थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। आयरलैंड की लोकल बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि अब पाकिस्तान की मार्केट तक रसाई आसान हो जाएगी और हम बिला खौफ व खतर पाकिस्तान जा सकेंगे, क्योंकि अब वहाँ इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए हमारी एम्बेसी मौजूद होगी। I think it's great news that they're after opening a new embassy in Pakistan. I think it's absolutely brilliant. It's going to give people a lot more confidence to visit an absolutely beautiful part of the world. So really congratulations to everybody involved. It's really fantastic to hear. पाकिस्तान में आयरलैंड की एम्बेसी खुल रही है, पहले क्योंकि नहीं थी, कॉन्सुलेट था सिर्फ, तो बहुत से केसेस मिस हैंडल हुए हैं। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके वीज़ा टाइम पे नहीं आए, मैं खुद उसका शिकार रहा हूँ। तो आई होप कि अब एम्बेसी खुलने के बाद ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी और मतलब आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात कम होंगी। आयरिश एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन हो रही है एंड we are very thankful to Irish Foreign Ministry as well as all the Pakistani associations involved in this matter, and a special thanks to Ehsan Chatta Sahab for his personal efforts and commitment. I'd like to thank the Foreign Office in Ireland and the business people here within Ireland for Pakistani business people and abroad for bringing this adventure and making it possible for creating business between Ireland and Pakistan in the future. And I think it's a very, very good thing for international trade. नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग भी बहुत ज़्यादा इसमें खुश हैं, पाकिस्तानी कम्युनिटी, कि उनको, क्योंकि सब लोग मोस्टली ड्यूल नेशनल हैं और यहीं से ट्रैवल करते हैं, तो उसमें उनको भी काफ़ी फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों ने इसको खुलवाने में या इसमें सारी एफर्ट्स की हैं, तो उन लोगों का भी बहुत शुक्रिया। उनकी एफर्ट्स हमेशा याद रखी जाएंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान में जो टाइज़ हैं वो बेहतर होंगे। ख़ास तौर पर पाकिस्तानी बिज़नेस कम्युनिटी और आयरिश बिज़नेस कम्युनिटी इस पे बहुत खुश है। इससे ट्रेड के मामलात बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, नए मौके सामने आएंगे। The opening of Irish Embassy in Pakistan will open many ventures for Pakistani and Irish communities. Definitely, this will strengthen our diplomatic relationship between Pakistan and Ireland. सफारत खाना खुलने से ऐसे अफराद जो आयरलैंड में अपनी फैमिलीज के पास जाना चाहते हैं या दीगर वीजा कैटेगरीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए भी काफी ज्यादा आसानियां देखने को मिलेंगी। पाकिस्तान में आयरिश एम्बेसी खुलने के साथ ही पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान कल्चरल, बिजनेस,
टूरिज्म और बड़े से मामला जो हैं वो उसमें पेशरफ्त देखने को मिलेगी। दोनों ममालिक एक दूसरे के करीब आएंगे और यहाँ का जो कल्चर है पाकिस्तान का कल्चर जो है आयरलैंड में वो एक दूसरे के साथ मुतारफ होगा। बड़ी खुशहाइंद खबर है, तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी आयरलैंड के अंदर और खुद आयरिश लोग भी इससे बहुत खुश हैं। फैसल मिर्जा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। सिफारत खाना पाकिस्तान बर्लिन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात जमा करने के लिए एक फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी तारकीन वतन और रफ़का की बड़ी तादाद ने शिरकत। मज़ीद तफ़सीलात असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। फंड रेजिंग तकरीब पाकिस्तानी तारकीन वतन और रफ़का की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मजीद काफिशों का अहादा भी किया। सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को एक गैर मामूली तबाही का सामना है, जिससे मुल्क का 1/3 हिस्सा बराह रास्त मुतासर हुआ। सिफारत खाना पाकिस्तान की जानिब से मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की फराहमी की कोशिशें जारी हैं। इस हवाले से समंदर पार पाकिस्तानियों का किरदार बहुत अहम है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि तकरीब और ऐलान करदा अतियात कौमी वहदानियत के इस मुश्तरका रब्त का सबूत है, जिसका इजहार हमारे समंदर पार पाकिस्तानी हमेशा अपने हम वतनों के लिए करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मजीद कहा कि एहतियात जमा करने का बुनियादी मकसद सैलाब ज़दगान की मुख्तसर, दरमियानी और तवील मुद्दत पर मुहित मदद की काविश करना है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों से भरपूर और मौसर अंदाज में निमटने की जरूरत पर जोर दिया। जर्मन NGOs भी बहुत काम कर रहे हैं, मैं इन टच हूँ, उनके कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ पहुंचे हुए हैं, बहुत काम करें। तो जब हुकूमत जर्मनी का तो मैंने जिक्र कर दिया था पीछे, जर्मन NGOs भी बहुत काम कर रहे हैं, तो ये भी इनको एक्नॉलेज करने की जरूरत है, इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तकरीब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 26,000 यूरो की रकम जमा की गई। कम्युनिटी मेंबरान ने सफारत खाने के इस इक़दाम को सराहा और मुश्किल वक्त में अपनी हम वतनों की मदद के लिए साबित कदम रहने के अज़म का अदा किया। असगर मिर्जा, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, जर्मनी। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर पर लिखी जाने वाली किताब अल काबातुल मुशर्रफा न सिर्फ मुनफरिद है बल्कि नायाब भी है, जिसके औराक में बैतुल्लाह शरीफ की तारीख पोशीदा है। अल काबातुल मुशर्रफा के मुसन्निफ नसीम अहमद ख्वाहिशमंद हैं कि इस किताब को हरमैन शरीफैन की लाइब्रेरी की जीनत बनाया जाए। मज़ीद तफ़सीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। अल काबतुल मशरफा किताब के मुसन्निफ नसीम अहमद आज कल सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुकीम है, जिनका कहना है कि उन्होंने अब तक मजमूई तौर पर 6 किताबें लिखी, जिनमें अल काबतुल मशरफा एक ऐसी किताब है जो मुकम्मल तौर पर हाथ से लिखी गई है। काबा शरीफ पर 1400 साल में बहुत काम हुआ, लेकिन जिस तरीके से मैंने इस पे काम किया है और इतना वक़्त लगाया है इस तरीके से, इसलिए भी कि मैं आर्किटेक्ट था, मुझे उभाम नहीं था स्केच बनाने में, तफसीलात देने में, सबसे पहले तो इमारत को समझने में और उसके सारी एस्पेक्ट्स को देखने में। तो मैं इस तरह इसकी जो प्लेटें तैयार हुई वो बिल्कुल ही मुनफरिद प्लेट्स जो हैं वो तैयार हुई। ज़रूरत ये है कि इसको हर उस जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ पे इस इल्म के मतलाशी तलाश में रहते हैं। किताब में तस्वीर को भी हाथ से ही पेंट किया गया है और इसमें बैतुल्लाह शरीफ की मुख्तलिफ अदवार में होने वाली तामीर के हवाले से भी बताया गया है। किताब में हतीम, हजर अस्वद, आब जमजम के कुएं और मुकाम इब्राहिम के मुतल्लिक भी तफसीली तारीखी हकायक शामिल किए गए हैं। अल काबतुल मशरफा एक ऐसी किताब है जो तारीख से लगाव रखने वालों के लिए नायाब नुस्खा है, जिसको 20 सालों में तहरीर किया गया है। उमैर अली, नुमाइंदा, 92 न्यूज़, रियाज। सऊदी अरब में एलाइड क्लब की जानिब से सऊदी यौमुल वतनी को मनाने के लिए अल खबर में एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी ने शिरकत की। अदील रियाज की रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की सऊदी यौमुल वतनी को भरपूर जज्बे और मोहब्बत से मनाते हैं। इसी सिलसिले के पेश नज़र एलीट क्लब सऊदी अरब की जानिब से एक रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में ख़वातीन और बच्चों ने सऊदी अरब के रिवायती लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थे। मुख्तलिफ शॉपिंग स्टॉल्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए, जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस भी बने। तकरीब से खिताब करते हुए मुंतज़िम शफीक इमरान ने कहा कि क्लब की तमाम सरगर्मियाँ कम्युनिटी को एक मुस्बत और तामीरी माहौल फराहम कर रही हैं, जबकि इस तरह के इवेंट्स समाजी हम आहंगी को बढ़ाने में मौसर किरदार अदा करते हैं। आज हम सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया हमारा दूसरा मुल्क है जहां हम एक साथ यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। इसी के लिए आज हम सेलिब्रेशन के लिए आज यहाँ आए हैं। फ्रॉम एलीट क्लब के से
आप भी इंजॉय करें। क्लब के बानी जवेरिया असद ने कहा कि एलीट क्लब ने सऊदी अरब में खवातीन और बच्चों को एक म्यारी प्लेटफॉर्म मुहैया किया, जहां उन्होंने अपने समाजी, कारोबारी, तालीमी और मुआशरती सलाहियतों को बेहतर बनाया है। यहाँ पे यौमुल वतनी को सेलिब्रेट करने के लिए ये तकरीब का इंतजाम किया है। इसके अलावा आज हमारे मैगजीन का रीडिंग टाइम्स के साथ हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म की हमारी इफ्तिताही तकरीब भी है और हमारी हमेशा से कोशिश होती है कि हम कम्युनिटी के लिए प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें जहाँ पे उनको डिफरेंट तालीमी और एंटरटेनिंग जो है एक्टिविटीज़ करवाई जाए और एंटरटेन किया जाए। तकरीब में एलीट क्लब के रसाले एलेटियन टाइम्स के ताज़े शुमारे की इफ्तिताही तकरीब भी रखी गई। एलेटियन टाइम्स को सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से शाया होने वाले वाहिद रसाला होने का एजाज हासिल है। तकरीब में शरीक शुरका ने क्लब की कोशिशों और खिदमत को सराहा और हौसला अफजाई की। हम लोग यहाँ पे यौमुल वतनी के सेलिब्रेशन के लिए आए हैं एलाइट क्लब की तरफ से और बहुत अच्छी यहाँ पे सब चीज़ें हैं, सब बहुत अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे भी। और मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया था ड्राइंग कंपटीशन में, तो वो भी बहुत इंजॉय किया, उसने ड्राइंग बनाई है और सबको गिफ्ट एंड सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तकरीब में बच्चों के लिए तालीमी और तफरीही सरगर्मियाँ तरतीब दी गयी। क्लब की जानिब से बच्चों को एजाजी असनाद और तोहफे भी तकसीम किए गए। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा, सऊदी अरब।